recording am I? Okay. Acute kidney injury में हमने इसको देखा था as one of the causes of intrarenal acute kidney injury. ठीक है, causes में we have the acute allergic reaction to medication like penicillin, cephalosporin, sulfa drugs वगैरह. ठीक है, फिर infections भी हो सकती हैं, streptococcus especially. Then we could have those collagen vascular diseases and sarcoidosis and autoimmune diseases. So clinical features may we're just gonna remember acute kidney injury. ठीक है, we may have rash, fever, and eosinophilia, and these are the classical findings. But the thing with acute interstitial nephritis is that मैंने इसका as such UQ नहीं देखा और KODs में भी लिखा था कि इसको briefly करना है. So I think if we just remember कि इसके causative factors क्या हैं, acute kidney injury का ये intrarenal cause है, rash, fever, eosinophilia हो रहा है. फिर diagnosis के अंदर renal function test जो है वो deranged होंगे, BUN creatinine levels raised होंगे. Urinalysis के ऊपर अगर eosinophils हैं urine में, they suggest the diagnosis. ठीक है, मतलब history भी ठीक है और सब findings भी उसके साथ correlate कर रही हैं और eosinophils आपको urine में मिल गए हैं और इसके अंदर proteinuria ऐसे mild होता है, you know, and there might be microscopic hematuria as well. But eosinophils in urine ऐसे अगर आपके पास कोई MCQ type आए तो आपको हो जाना चाहिए. Renal biopsy is the only way to distinguish between acute interstitial nephritis and acute tubular necrosis based on clinical grounds alone. ठीक है, तो basically अगर आपके पास कोई clinically rash, fever, eosinophilia वगैरह आ रहा है तो it might be acute tubular necrosis as well, but I mean उसकी ना histories बहुत दरअसल ना different होती हैं in general. तो at the end of the day अगर आपके पास ऐसा I already told you, जब भी renal का MCQ है ना, always analyze what they're asking. Are they asking for the best या golden test? That's a biopsy. Are they asking for the first test? First test अक्सर या dipstick होगा, urine dipstick या कुछ. Are they asking like specific test? तो फिर उसके ऊपर it might be कि उस वक्त आपने biopsy करनी है और उसके अंदर क्या deposit नजर आ रहे हैं. तो you just think of like what exactly are they trying to ask, क्योंकि वो इस तरह ट्रिक करते हैं बीच में. फिर treatment है removing the offending agent, और अगर infection है तो उसको if present तो infection को आपने करना है. And at the end of the day अगर नहीं काम कर रहा है कुछ भी तो steroids might help. And literally at the end of the day अगर ये सारे नेफ्राइटिस वगैरह में कुछ नई सीवियर फॉर्म आ रही है, नहीं ठीक हो रहा तो स्टेरॉइड्स दे देते हैं. हालांकि अक्सर उसका वो भी नहीं होता, कोई साइंटिफिक बेसिस भी नहीं होता, फिर भी मतलब दे थिंक दैट इट वुड हेल्प. राइट, अब हम देखते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस. नहीं देखना, हम कर चुके हैं. रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस, no, we don't need to do this. This is the one we are going to do. Autosomal dominant polycystic kidney disease. अब इसकी चीजें ना आप लोग मुझे बताएं, because honestly हम ये काफी दफा पढ़ चुके हैं. ये मुझे बताएं कि जो अब जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो किडनीज enlarge होंगी या एट्रोफिक होंगी? enlarged होंगी. हाँ जी, enlarged होंगी. ठीक है, आपको cysts उसमें नजर आएंगे. In fact, we'll just go to this और ये आपको देखें cysts नजर आ रही हैं multiple, right? और इसके अंदर किडनीज के अंदर अगर eventually end stage renal disease हो रहा है तो उसकी definitive treatment क्या होगी? What would be the definitive treatment? Transplant. Renal transplant. ठीक है. और what are the extra renal manifestations? इसके साथ क्या-क्या associations हो सकती हैं? Berry aneurysm ऐसा barachnoid hemorrhage उसकी वजह से हो सकता है. Berry aneurysm हो गया एक, और hepatic cyst है. हाँ, perfect. Hepatic cyst हो सकती है. उसके अलावा pancreatic cyst. Pancreatic cyst is very less common. हमारे पास heart का सोचें, heart में क्या हो रहा है? ठीक है, इसमें हार्ट वाल्व में माइट्रल वाल्व का आपने याद रखना, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स. ठीक है, तो सबसे कॉमन आप देखेंगे बेरी एन्यूरिज्म हो रहा है. ठीक है, रीनल सिस्ट्स वो तो हो ही रही हैं, रीनल फेलियर, किडनी स्टोन वगैरह. फिर जो एक्सट्रीनल में हार्ट वाल्व अबनॉर्मैलिटीज हैं, एंड देन सिस्ट, स्पेशली जो हेपेटिक सिस्ट है वो बहुत कॉमन है. ठीक है, उसके अलावा दीज लेस कॉमन डाइवर्टिकुलर हर्नियाज वगैरह, बट वेरी लेस कॉमन. तो मेन आपने याद रखना है इंट्रासेरेब्रल बेरी एन्यूरिज्म. ठीक है, उसके बाद हार्ट वाल्व की माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स और
लिवर सिस्ट, हेपेटिक सिस्ट, ठीक है। तो इसके फीचर्स में आपको आएगा हीमेक्चूरिया, एब्डोमिनल पेन, हाइपरटेंशन होगा काफी सारे पेशेंट्स में, और palpable kidneys on abdominal examination. If you get both kidneys palpable on abdominal examination, it means this is polycystic kidney disease, ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड कंफर्म कर देगा, मल्टीपल सिस्ट हमें नजर आएंगी किडनी के अंदर, एंड देन सीटी स्कैन और एमआरआई भी कर सकते हैं। नो क्यूरेटिव थेरेपी, अगर सिस्ट जो है वो सिम्टोमेटिक है उसको आप ड्रेन करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पेन वगैरह कॉज कर रही है जहाँ, अगर इन्फेक्शन जब हो इनके अंदर ना, इन्फेक्शन का चांस इंक्रीज होता है, ठीक है, और स्टोन्स का चांस भी ऐसे इंक्रीज होता है। तो इन्फेक्शन को आप एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करेंगे, और हाइपरटेंशन को भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अगेन एस इनहिबिटर्स, ARBs वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत ही सिंपल शॉर्ट सा डिजीज है। इसकी ऑब्वियसली देयर विल बी फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी और ये सब, राइट। तो दिस वाज इट फॉर एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, बिकॉज ये ऐसा डिजीज जो हमने पहले ही कर चुके हैं, तो फिर इस पे ज़्यादा ऐसा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है हमें। Then we have renal artery stenosis, ठीक है। renal artery stenosis में this is the most common cause of secondary hypertension. Primary hypertension में क्या cause है, कौन बताएगा मुझे? इडियोपैथिक है वो। हाँ, प्राइमरी हाइपरटेंशन 95% केसेस में होता है, वो इडियोपैथिक होता है। लेकिन अगर आपके पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन आ रहा है तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है। कॉज ऑब्वियसली एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है या फिर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। तो इन दोनों में आपने इवेंचुअली डिफरेंशिएट करना होगा, ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज के ऊपर। एथेरोस्क्लेरोसिस आप एक्सपेक्ट करेंगे एल्डरली एंड देन जेंडर के हिसाब से एल्डरली मेन में, और फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया आप एक्सपेक्ट करेंगे यंग फीमेल्स में, और ये बायलैटरल होता है 50% केसेस में, ठीक है, और ये कम केसेस में बायलैटरल होता है। एंड स्मोकिंग एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ऑब्वियसली जो एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमारे पास इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। तो आपके पास एल्डरली मैन आएगा, वो पता नहीं सिगरेट्स भी पी रहा होगा, मे बी ही हैज अ लॉट ऑफ स्मोक ईयर्स, और उसको हाइपरलिपिडीमिया भी होगा, तो उसके अंदर आप रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जो है सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स यही होंगे, एक तो हाइपरटेंशन होगा, ठीक है, एंड इट मे बी रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल थेरेपी, और ये सिवियर होता है, ठीक है। इसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। डिक्रीज्ड रीनल फंक्शन या क्रिएटिनिन बीओएन रेशियो सारा उधर उधर हुआ होगा। अब एब्डोमिनल ब्रूई इज क्वाइट मतलब इट्स अ क्वाइट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, ठीक है। तो ये, या फिर ये जो अपर क्वाड्रेंट, राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एपिगैस्ट्रियम, बेसिकली ऊपर जो एब्डोमिनल का हिस्सा है यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, और ये फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया के अंदर के पेशेंट्स में जो है स्पेशली कॉमन है, वैसे दोनों में होगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, रीनल आर्टीरियोग्राम इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड से, ठीक है। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पूछ रहे हैं तो रीनल आर्टीरियोग्राम है, लेकिन बिकॉज कॉन्ट्रास्ट डाई जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक हो सकती है, तो रीनल फेलियर के एक तो पेशेंट्स में नहीं यूज करना, ऊपर से इट्स नॉट द फर्स्ट टेस्ट टू डू, यू प्रेफर डूइंग द अल्ट्रासाउंड फर्स्ट, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड से आपको रीनल आर्टरी फ्लो पता चल जाएगा, और फिर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप नॉर्मल ऐसे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करें, तो रीनल स्टेनोसिस में होगा कि जिस किडनी की आर्टरी स्टेनोज्ड होगी तो वो किडनी एट्रोफिक हो जाएगी, और जो दूसरी किडनी है वो वर्कलोड को संभालने के लिए वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह अगर बायलैटरल किडनी इनलार्जमेंट है, थिंक ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अगर सिंगल किडनी एट्रोफी है, दूसरी इनलार्ज है, थिंक ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। देन वी हैव मैग्नेटिक, इसका क्या था, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी एज वेल, ठीक है। और इसका ये फायदा है कि इसकी जो डाई है इज नॉट नेफ्रोटॉक्सिक, तो ये रीनल फेलियर के पेशेंट में यूज हो सकती है। तो अगर एमसीक्यू में है कि पेशेंट हैज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, पेशेंट आल्सो हैज एंड स्टेज रीनल डिजीज ब्ला ब्ला ब्ला, और कौन सा आप सिलेक्ट करेंगे, तो इट इज MRA। बट इफ द पेशेंट डज नॉट हैव एंड स्टेज रीनल डिजीज, अगर उसकी किडनीज फेल में नहीं जा रही, तो फिर गोल्ड स्टैंडर्ड रीनल आर्टीरियोग्राम है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। MRA में नेफ्रोटॉक्सिक, और ये सर्जरी में भी आप बहुत देखेंगे कि वो बार बार मेंशन करते हैं कि MRA की डाई नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होती, और जो आर्टीरियोग्राम दूसरे होते हैं उनकी डाइज जो हैं वो नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी आप रिवैस्कुलराइजेशन करेंगे परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल रीनल एंजियोप्लास्टी के साथ। अगर सर्जरी ये वाली नहीं सक्सेसफुल हुई तो बाईपास करेंगे। कंजर्वेटिव में अगेन आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे विद एस इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह, ठीक है।
तो जस्ट रिमेंबर ऊपर ऊपर की इसकी ट्रीटमेंट, बट आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। फिर हमने देखना था ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। तो लेट मी जस्ट ओपन दैट पेज फ्रॉम डेविडसन ताकि हम उसको देख सकें। वेयर इज इट? एक सेकेंड, सॉरी आई लॉस्ट माय, मैंने ना अपनी डेविडसन को ना 1000 पीसेस में किया है और हर पीस किसी और जगह पे गया है। सो पेज नंबर 426, पेज नंबर 426 है डेविडसन का। इसके ऊपर वी हैव ड्रग इंड्यूस्ड रीनल डिजीज। एक सेकेंड, ओके, ड्रग इंड्यूस्ड रीनल डिजीज के अंदर वी हैव मेन एनसेड्स एंड एस इनहिबिटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं, और ये कॉज कर रही होती हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह इसकी वजह से ना। ठीक है, यूजुअली दीज आर रिवर्सिबल अगर ये हम अर्ली पकड़ लें इसको। अच्छा, एनसेड्स के अंदर उन्होंने लिखा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स बिकॉज उसकी जीएफआर की रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं, इसलिए खराब हो रहा है सारा। और एस इनहिबिटर्स का मसला ये है कि बिकॉज एंजियोटेंसिन 2 जो है वो जीएफआर को वो कर रहा था हैंडल, तो इसलिए उसकी वजह से वहां पे जीएफआर कम होने की वजह से ये किडनी जो है रीनल डिजीज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मुझे कौन बता सकते कि कौन से अच्छा, लेट मी जस्ट पुट दिस इन अ डिफरेंट वे। अगर हम क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को एस इनहिबिटर्स दी हुई उसकी हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए, तो उसकी हम ये वाली ड्रग कब बंद करेंगे, स्पेशली कब? What is the situation where we will have to stop giving these? हाइपरकैलेमिया अगर हो जाए 6.5 से अबव मिली। ठीक है, हाइपरकैलेमिया मोर देन 6.5 अगर हो जाए, एंड जब उसका ना बीजो है ना क्रिएटिनिन राइज ज्यादा आ रहा हो, इम्प्रूव ना करे वो। हाँ, इम्प्रूव एक मतलब देखे ना, इनिशियली पता है क्या एस इनहिबिटर्स का होता है, इनिशियल ब्यून क्रिएटिनिन एकदम राइज होता है। ठीक है, एकदम ये नीचे वाला क्यों बना रही हूँ, राइज होता है। तो इसमें ये है कि आपने 7 to 10 डेज के लिए मॉनिटर करना है, उसकी डोज एडजस्ट करनी है, डोज उसकी थोड़ी कम कर देनी है, या फिर अगर बहुत ज्यादा राइज हो रहा है तो उसको बंद कर देना है। उसके अलावा अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, दिस वाज द वन ऑफ द ड्रग्स ऑन द जो 6 डे रूल वाला कार्ड था उस पे था। ठीक है, फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, तो ये एस इनहिबिटर्स का हो गया। ठीक है ना। अच्छा, एनसेड्स का है कि एनसेड्स के अंदर भी अगर साथ साथ जैसे वॉल्यूम डिप्लीशन हो रही है फॉर एनी रीजन, हार्ट फेलियर वगैरह का पेशेंट है, सिरोसिस का पेशेंट है, उसके साथ साथ वो एनसेड्स भी ले रहा है, तो इसके अंदर आपके पास ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी वगैरह हो सकती है। ठीक है, और ये अक्सर एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी जो है ये लॉन्ग टर्म, ये क्रॉनिक यूज की एक प्रॉब्लम है। एस इनहिबिट, बस यही इसमें यही था। पेशेंट के पास जो डेवलप होंगे ना फीचर्स, दे कुड बी ऑफ नेफ्रोटिक, दे कुड बी ऑफ नेफ्रेटिक, आपने उसको बस मेजर उसको देखना है कि और कोई उसकी रीजन नहीं होगी। बस क्वेश्चन में लिखा होगा ही इज टेकिंग लाइक एनसेड्स फॉर 10 years, या ही हैज यू नो पता नहीं कितने सालों से ये मेडिकेशन ले रहा है, फिर आपने वो सोचना है। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर किडनी चैप्टर। हम अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से ही समझ आएगी कि कितनी हमें ये वाला रिपीट कर दें, वो एस इनहिबिटर्स कब स्टॉप करनी है? अच्छा, एस इनहिबिटर स्टॉप करनी है या फिर हाइपरकैलेमिया जो है मोर देन 6.5 चला जाए पोटेशियम लेवल। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या कहते हैं, उस पेशेंट को फीवर हो, वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, या एनी हाइपोवोलेमिक इशू हो रहा हो। ठीक है, फिर उसके अलावा जब हम इनिशियली पेशेंट की थेरेपी शुरू करते हैं एस इनहिबिटर्स या एआरबीज पे, तो इनिशियली जीएफआर जो है वो एकदम हमारा ड्रॉप हो जाता है, हमारा बीयूएन क्रिएटिनिन जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। उस केस में अगर चेंज बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है तो हम नहीं चाहते पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में, एक्यूट किडनी इंजरी होना शुरू हो जाए उसको, तो हम उसकी डोज को एडजस्ट करेंगे और उसको 7 to 10 डेज के लिए मॉनिटर करेंगे पेशेंट को। ठीक है, क्वेश्चन टाइम में ये भी आ ओके, सकता है कि न्यू स्टार्ट की है थेरेपी या उसकी डोज बढ़ाई है एस इनहिबिटर्स वगैरह की। ठीक है, यूटीआई करेंगे क्वेश्चन। ओके।
यूटीआई के अंदर यूटीआई बिकॉज हमने वो सर्जरी वगैरह में कवर कर लिया था, और उसके अलावा भी वी कवर्ड रीनल कार्सिनोमा इन सर्जरी, तो फिर we're not gonna look at it here. क्वेश्चन एक आया हुआ था यूटीआई का, और एक मैंने एडिनोकार्सिनोमा का भी क्वेश्चन देखा था, और एक स्टोन का भी देखा था इनफैक्ट, तो sometimes they mix it up. Yeah, let's, where are we? स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही मेरी? सॉरी, आई एम स्ट्रगलिंग टुडे विद दिस स्क्रीन। ये आ गई स्क्रीन, आ रही है अब नजर? आ रही है नजर। जबरदस्त, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, किधर रखूं चैट वाला बॉक्स? इधर रखते हैं। ओके, मैं ये पढ़ती हूँ क्वेश्चन। 38-year-old man presents with history of edema feet and periorbital edema of 3 months duration. His serum albumin is 2.2. ठीक है। His serum albumin 2.2, LDL is 184. Normal value दिया है कि less than 160 होना चाहिए। Urea is 30, serum creatinine is 1.1, and 24-hour urine protein excretion is of 8 grams. His renal biopsy report suggests membranous glomerulonephritis, which seems primary, it is idiopathic, as there does not seem to be a secondary cause, such as malignancy or drugs in this patient. तो इनका क्वेश्चन है, इन्होंने इनफैक्ट ये पूछने की भी जहमत नहीं की कि है क्या, because they've already kind of told you. So they said, apart from symptomatic treatment, for example, diuretics, which other drugs can be used as a possible curative treatment? हाँ जी. Anti-hyperlipidemics. And what else? Steroids. ACE and ARBs. Okay, let's ACE and ARBs, तो डाययूरेटिक्स में ही आ जाएंगे। नहीं की, मतलब दैट्स अ सिम्प्टोमेटिक ना, जैसे उसके लिपिड ज्यादा है तो वो कम कर दें, हाइपरटेंशन है तो वो कम कर दें, ठीक है। इसमें आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ओके, लेट्स लुक एट दिस सिस्टमैटिकली। उसको एडीमा फीट है, पेरिऑर्बिटल एडीमा है, मतलब उसकी हम ऑलरेडी सस्पेक्ट करें उसका ऑन्कोटिक प्रेशर कम है, तो उन्होंने यहाँ और ये 3 months ड्यूरेशन मेंशन किया, तो कोई ऐसी रैपिडली प्रोग्रेसिव चीज नहीं है, इट इज something a little bit slower, 3 months, ठीक है। फिर सीरम एल्ब्यूमिन इज 2.2, तो उन्होंने प्रूव कर दिया एल्ब्यूमिन कम है, ठीक है। फिर एलडीएल ज्यादा है, एल्ब्यूमिन कम है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। अब हम नेफ्रोटिक का सोचना शुरू हो गए। अब इंटरेस्टिंगली उसका यूरिया क्रिएटिनिन विद इन नॉर्मल रेंज, अगर हम 20 to 40 इसको कंसिडर करें ये नॉर्मल है, और इसको मतलब ऐसे 0.6 to 1.2 कंसिडर करें तो ये भी नॉर्मल है, तो किडनी फेलियर में नहीं जा रही, अभी सिर्फ प्रोटीन्स हमारे लूज हो रहे हैं, अभी सिर्फ नेफ्रोटिक हो रहा है, ठीक है। 24-hour यूरिन प्रोटीन एक्सक्रीशन 8 grams है। हमने देखा था कि ये 1.5 से ज्यादा तो हम उसको प्रोटीनूरिया कंसिडर करते हैं, हाँ। तो और ये मोर देन 3.5 ग्राम पर डे अगर हो तो हम फिर नेफ्रोटिक उसको कर देते हैं, तो ये नेफ्रोटिक ही है, राइट, ये पता चल गया। रीनल बायोप्सी पे अब मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अगर मेम्ब्रेनस आपके पास वर्ड आए, हमने एक ही चीज की है जिसके आगे मेम्ब्रेनस, स्टेरॉइड, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ठीक है। और हमने मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में पढ़ा था मोस्ट कॉमनली ये इडियोपैथिक रीजंस की वजह से होती है, ठीक है। अब हमने मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जब कर दिया है तो इसकी जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है इट इज स्टेरॉइड्स एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है। मैं वो सारे डिजीजेस मेंशन कर देती हूँ, आप कहीं लिख लें, जिनकी ट्रीटमेंट इज स्टेरॉइड्स एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड। सबसे पहले वी हैव मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ठीक है। उसके अलावा वी हैव गुड पास्चर, इसकी भी ट्रीटमेंट यही है। फिर वेगनर्स की भी ट्रीटमेंट ये साइक्लोफॉस्फेमाइड और स्टेरॉइड्स है। जर्ग स्ट्राउस की भी ट्रीटमेंट साइक्लोफॉस्फेमाइड और स्टेरॉइड्स है। और हाँ, बस यही मैंने लिखे हुए थे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी सिवियर नेफ्रोटिक या नेफ्रिटिक के अंदर स्टेरॉइड दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून कॉजेस। तो ये हमारे पास इसकी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज स्टेरॉइड एंड cyclophosphamide. Is this patient at risk of MI or other cardiovascular event? If yes, why? Yes, क्योंकि हाइपरलिपिडेमिया हुआ है। ठीक है, look at the hyperlipidemia, ठीक है ना। हाइपरलिपिडेमिया होगा तो he is at risk. Okay, which drug can reduce proteinuria without
curing disease. एस और एब्स ठीक है, वो हमने ऊपर अदर ड्रग्स में भी लिख सकते थे क्योंकि प्रोटीन यूरिया था. you're right, but you know in A के अंदर they specifically said apart from symptomatic treatment. ये एस और एआरब्स ना देखो ये इसमें आते हैं. हाइपरटेंशन कम करनी है, एस एआरब्स दे दिए. प्रोटीनूरिया कम करना है, एस एआरब्स दे दिए. वो कम तो करना फिर है. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ऊपर तो हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स भी नहीं लिखने ए में, वो भी मेरा नहीं गलत था. नहीं, सिर्फ इसके अंदर क्यूरेटिव जो इसकी ट्रीटमेंट कंसिडर की जाती है. वैसे तो इसकी ट्रीटमेंट जो है मतलब है कि हाई डोज हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं एंड साइक्लोफॉस्फेमेट, बट इसे इट मे इम्प्रूव. ये भी इसकी डेफिनेटिव ऐसे कुछ खास नहीं. ट्रीटमेंट तो ये अंडरलाइन कॉज की ही होगी, लेकिन बिकॉज दिस इज इडियोपैथिक तो आपने इसके अंदर और कोई आंसर नहीं इसका बन रहा अपार्ट फ्रॉम स्टेरॉइड्स, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड साइक्लोफॉस्फेमेट. ठीक है. फिर which drug can reduce proteinuria? AR, ये ACE inhibitors और ARBs. और ये पता क्या इनका है कि अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन ना भी हो तो ये इन इट सेल्फ प्रोटीनूरिया को कम कर रहे होते हैं. तो ये याद रखें आप इस बात से. फिर your curative treatment fails and he slowly progresses to end stage renal disease over 3 to 4 years. Apart from renal disease, he has no other comorbidities. In your opinion, what is the best renal replacement therapy for him? ठीक है, he has progressed to end stage renal disease. एज का कम है सो ट्रांसप्लांट कर दें. अच्छा, जब भी वो एंड स्टेज renal disease देना, थिंक कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 है. स्टेज 5 में हमारा GFR 0 to 15 वाली रेंज में था. इतने कम GFR के साथ आप रीनल ये ट्रांसप्लांट ही करेंगे. बेस्ट थेरेपी ट्रांसप्लांट है. ठीक है ना. प्लस फिर यस्टरडे अगर ओल्ड एज और कोमोर्बिडिटी तो उसमें ट्रांसप्लांट नहीं करते, वो तो सारा क्राइटेरिया इधर है ही नहीं. हाँ, अगर ओल्ड एज और कोमोर्बिडिटीज हो तो फिर उसमें हम उसको कहते हैं पैलिएटिव केयर, उसको हम कंजर्वेटिवली ही मैनेज करते हैं. ठीक है ना. राइट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं. ओके, ये क्वेश्चन 2 बिट्स में था, ये हम पढ़ते हैं. ओके, 32-year-old man presents to emergency department with dyspnea and frank hemoptysis. His problem started 4 weeks back with low-grade fever, weakness, decreased urine output. Okay, dyspnea and hemoptysis started 10 days later. On examination, his BP is 160 by 100 and bilateral diffuse shadows resembling ground glass appearance. ठीक है, ये उसके एक्सरे लंग्स जो चेस्ट एक्सरे किया उस पे. His serum creatinine was 5.4. Okay, this is raised. Blood urea 120. This is raised. Arterial blood gas to oxygen pressure of 56. मतलब उसकी saturation बिल्कुल अच्छी नहीं, उसके lungs उड़ गए हैं बेचारे के. Urine examination showed proteinuria 1.5 grams. So it's not exactly in the nephrotic range, but proteinuria है. And then few RBC casts हैं. अच्छा, this is a very interesting question. हाँ जी पूमल, justify your answer. क्योंकि सिर्फ लंग की इन्वॉल्वमेंट एक ही में थी गुड पास्चर सिंड्रोम में, और वो वोमिटिस इज देयर, ब्लड इज देयर इन हिज वोमिटिस. ठीक है. और हीमाचूरिया भी है. या ठीक है, लंग्स हैं और किडनीज इन्वॉल्व हैं. ठीक है, और साथ में देयर इज प्रोटीनूरिया एंड हीमाचूरिया. तो दिस इज अ क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड पास्चर सिंड्रोम. ठीक है ना. एंड यू कैन टेल कि उसको मसला सिर्फ 4 weeks बैक स्टार्ट हुआ और इतनी जल्दी जो है वो उसको मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी होगी, उसकी किडनी फंक्शन भी खराब हो गया. 4 weeks लगे उसको, मतलब इट इज अ रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज. तो गुड पास्चर रैपिडली प्रोग्रेसिव भी है. गुड पास्चर में ये साइन सिम्टम्स भी होते हैं. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस हो गया गुड पास्चर. What antibody test is likely to confirm your diagnosis? Now, this is my favorite. In B quest part, they have given away a little bit. अगर आपको A में फिर भी समझ नहीं आया diagnosis क्या है, B के अंदर उन्हें पूछ लिया antibody test. तो हाँ, anti-glomerular basement antibodies. ठीक है, anti-glomerular basement antibody. और good pasture को हम anti-glomerular basement membrane disease भी कहते हैं. तो ये फिर बी से थोड़ा सा शायद इसको फिगर आउट कर लो. सी फिर अपार्ट फ्रॉम पॉसिबल डायलिसिस गिवन टू स्पेसिफिक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, गिव बी 2 specific modalities of treatment. That's what they mean.
ओके प्लाज्माफेरेसिस है और साथ में इम्यूनोसप्रेसिव जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड। ठीक है, प्लाज्माफेरेसिस कर सकते हैं या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड देन मतलब या फिर साइक्लोफॉस्फेमाइड भी दे सकते हैं, राइट। तो दिस क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ है आई नो, क्योंकि जब मैंने पहली दफा ये पढ़ा था आई वाज लाइक व्हाट, बट इसलिए मैंने गुड पास्चर थोड़ा डिटेल में कराया, राइट। इसके डीडीज बताएं इस क्वेश्चन स्टेम के। वेगनर्स ग्रैनुलोमा। हाँ, वेगनर्स हो गया, दूसरा डीडी बताएं। वेजनर ग्रैनुलोमा, लूपस। हाँ, लूपस, ठीक है। तो 2 डीडीज भी कर लिए, और इनकी जबरदस्त बात यह है कि इन तीनों के ट्रीटमेंट के अंदर स्टेरॉइड आते हैं, ठीक है, दैट्स गुड। बस लूपस में आई वांट टू ऐड वन थिंग कि हमारे जो अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया, ऐसे डीडीज आ गए, ठीक है, हमारे पास गुड पास्चर आ गया, हमारे पास वेगनर्स आ गया, हमारे पास लूपस आ गया। लूपस की जो ट्रीटमेंट है इसमें स्टेरॉइड्स देंगे, और साथ में इंस्टेड ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड वी गिव माइकोफेनोलेट, ठीक है। एंड डेविडसन में एक और क्या लिखा होता है, एक और ड्रग लिखी हुई थी, नहीं यही थी, स्टेरॉइड्स एंड माइकोफेनोलेट। उन्होंने मेथाइलप्रेडनिसोलोन लिखा था बेसिकली, इसलिए मुझे एम से कुछ और याद आया था। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड के बजाय लूपस के अंदर वी विल गिव माइकोफेनोलेट, ठीक है। Let's move on to the next question. Right, 22-year-old man presented with swelling of feet and, oh, I'm so sorry. Which part should I repeat? Mics on कर लें, कोई मसला नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। मैं रिपीट कर देती थोड़ा सा। हमारे पास जो ऊपर वाला क्वेश्चन था हिमोप्टिसिस और हीमाटूरिया का, उसका डीडी बनेगा, एक तो मोस्ट कॉमन है कि गुड पास्चर हो रहा है, अगर उसके अलावा डीडी देख रहे हैं वेगनर्स आ जाएगा और लूपस आ जाएगा, और हम लोग इन सब की ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड देते हैं, और गुड पास्चर और वेगनर में स्टेरॉइड प्लस साइक्लोफॉस्फेमाइड आएगा ट्रीटमेंट में, और लूपस के अंदर स्टेरॉइड प्लस माइकोफेनोलेट आएगा, राइट। फिर हमारे इसमें तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड का भी लिखा हुआ बुक में कि ये भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, दोनों ही इक्वली इफेक्टिव है। यूज कर सकते हैं, बट वो मैं दूसरे लेक्चर्स भी सुन रही थी ना यूट्यूब पे, तो अब जैसे जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से माइकोफेनोलेट इज प्रूवन टू बी मोर सक्सेसफुल। खैर, बट लाइक बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तीनों की स्टेरॉइड प्लस स्टेरॉइड प्लस साइक्लोफॉस्फेमाइड ट्रीटमेंट याद कर लें तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, तो अब लिख सकते हैं क्योंकि डेविडसन में लिखा है। All right. 22-year-old man presented with swelling of feet and periorbital puffiness for last 4 weeks. So this is okay. He is otherwise healthy, but has noticed increased frothing of his urine. Okay. What that is of normal color. I think what that is of normal color. HP उसका 12 है, ESR उसका 40 है, urea normal, creatinine normal, HGBT 20, serum bilirubin 2, अच्छा थोड़ा ज़्यादा है। यूरिन पे what does RE even mean? I don't know. ग्लूकोज nil, प्रोटीन 2+ हो गया है, ठीक है, RBs nil, albumin 0.2, casts plus, 1+ रखा है, ठीक है। What are the 5 most likely diagnoses in this patient with your reasons for each diagnosis in this patient? Okay. post-glomerular nephritis. ये नेफ्रोटिक की वो जो 4-5 कॉजेज है एडल्ट्स वाली वो लिख देंगे। हाँ, देखो ना, बेसिकली अभी हमने सिर्फ ये फिगर आउट किया है कि उसके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है और उसको स्वेलिंग हो रही है, फीट पेरिऑर्बिटल पफिनेस वगैरह हो रही है, उसके अलावा हमें वो खास चीजें ऐसे पता नहीं चल रही, ठीक है। तो इसके अंदर हम नेफ्रोटिक की जो हमने कॉजेज देखी थी, जो एडल्ट्स की मैंने देखी थी, उसमें बताएंगे। सबसे कॉमन कॉज एडल्ट्स में नेफ्रोटिक की क्या है? Membranous nephropathy. ठीक है, मेम्ब्रेनस होगी। फिर सेकंड पे हम क्या करेंगे? Membranoproliferative. फोकल सेकंड पे सेगमेंटल। एफएसजीएस होगा। हाँ, अब सेकंड पे फोकल सेगमेंटल, ठीक है, मोस्ट कॉमन। फिर उसके अलावा आप मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ऐड करते हैं, और आप उसके अलावा क्या है, खुद मेरे दिमाग से कॉजेज निकल गई, मुझे टेबल किया था। डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगा, और डायबिटिक 22 years. He is 22, diabetic नहीं होगा। कॉज बता रही हूँ नेफ्रोटिक है क्योंकि 5 पूछे मैं।
वही तो डायबिटिक diabetes होता तो वैसे भी हिस्ट्री बहुत भी common होती है। है, डायबिटिक होता तो हिस्ट्री भी होती है, और यहाँ पे उन्होंने ग्लूकोज Maybe नील उसको आ रहा पता है, नहीं है, उससे नील ना आ रहा कराया है, टेस्ट। नील आ रहा है, लिखा हुआ है ग्लूकोज नील, डायबिटिक इज रॉन्ग आंसर, चेक। एक सेकंड में डायबिटीज में पॉज करके जरूरी आंसर होता है चेक करती ग्लूकोज हूँ। यूरिन में आना? ये इन्होंने यस 5 डायग्नोसिस क्यों पूछे हैं? ये ऐसे पता नहीं क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें इतना ज्यादा पता क्योंकि होगा। पोस्ट रैप भी है इसमें, लग रहा है। हम्म, पोस्ट स्टेप्स तो कहीं से नहीं लग रहा, ना उसे कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, ना उसको हिमाचोरिया हो रहा है, ना कोई हाइपरटेंशन है, कुछ भी नहीं है, जस्ट उसको नेफ्रोटिक वाले वो खुद सिम्टम ही है, पेरी रिजॉल्व हो ऑर्बिटल जाता है ना। पफिनेस। और तो पेरी ऑर्बिटल पफिनेस तो फ्रॉथ कभी भी नहीं होती नेफ्रिटिक में, फ्रॉथी यूरिन भी नेफ्रोटिक का साइन है, और ये पेरी ऑर्बिटल पफिनेस और फेस से जो स्वेलिंग स्टार्ट हो रही है, ये सारे सारे के सारे नेफ्रोटिक के साइंस हैं। इवन जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी नहीं आ रहे यूरिन में, तो हाउ हाउ कैन यू से कि इसको हिमाचूरिया और ये कोई पोस्ट इन्फेक्शियस है? ओके गाइस, अच्छा अब हम इसको देख रहे हैं। इसमें बुक के अंदर ना उन्होंने मेनली प्रोटीनूरिया वगैरह की डीडीज लिख दी हैं। मतलब है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लेकिन बिकॉज प्रोटीनूरिया मेन हो रहा है ना, मतलब एल्ब्यूमिन लॉस की वजह से ये स्वेलिंग वगैरह हो रही है, पेरीऑर्बिटल पफिनेस एंड प्रोटीन 2+ आया हुआ है। तो उन्होंने ऐसे, हमने जो प्रोटीनूरिया के डीडीज देखे थे ना, वो किए हुए लिस्ट इन्होंने लिखा हुआ है मेम्ब्रेनस, फिर वो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिर इन्होंने फोकल प्रोलिफरेटिव लिखा हुआ है, एंड देन देव आल्सो रिटन पाइलोनेफ्राइटिस। तो एक सेकंड हम खुद ही देख लेते हैं प्रोटीनूरिया की कुछ डीडीज और उनको निकाल के हम याद कर लेते हैं, ठीक है? स्क्रीन पे बुक नजर आ रही है? नहीं। एक मिनट में ना स्टॉप नहीं करके आ मैं रही। शेयर करती हूँ। स्टॉप एंड देन शेयर। ऑल राइट, तो इसके अंदर हमने चलो ग्लोमेरुलर के कॉजेज कुछ कर लिए, और इसमें फिर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, प्रोटीनूरिया है ना, और यूटीआई हो सकता है। खैर उसने यूटीआई का तो कोई इसका ईएसआर रेस तो नहीं है। आई थिंक यही फिर बनेंगे जो हमने किया ना, मेम्ब्रेनस, फोकल सेगमेंटल और इसके मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव पे तो आप लोग सारे तीनों पे तो अग्री है ना। फिर 2 और के लिए आप ये इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस डाल दें, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन डाल दें, ठीक है? उसके अलावा तुमने कुछ खास ऐसे मेंशन नहीं किया। राइट, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Oops, इसका मैं आंसर हटाना भूल गई। खैर, 14-year-old girl has presented with smoky colored urine which passes with hesitancy and burning. She has diastolic hypertension with dependent edema and periorbital puffiness. Diagnosis क्या है? And enlist 5 investigations you will do to complete your diagnosis. Now this would have been a difficult question अगर मैंने ये सामने इतना बड़ा ब्लू हाईलाइट में ये ना डाला होता। लेकिन बेसिकली स्मोकी कलर्ड यूरिन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन एंड एडिमा वगैरह से दे एक्सपेक्ट यू टू नो कि ये पोस्ट स्ट्रेप है, बिकॉज ये पोस्ट स्ट्रेप की स्पेसिफिक फीचर्स हैं। हाँ, अच्छा, नाउ 5 इन्वेस्टिगेशंस में, बिकॉज ये पोस्ट स्ट्रेप है, तो फर्स्ट जस्ट गो फॉर द एएसओ टाइटर एंड द एंटी क्या कहते हैं डीएनएज, ठीक है? फिर आप उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट लेवल्स भी चेक कर सकते हो, फिर उसका कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन कर सकते हो, एट द एंड आप बायोप्सी भी कर सकते हो, उसके ऊपर आपको हम्स ऑफ आईजीजी एंड C3 नजर आएंगे, ठीक है? तो ये हमारे 5 टेस्ट हो गए। या let's move on to the next question. A known case of migraine who has been taking various painkillers for the last 10 years presents with history of lack of appetite, nausea, red colored urine, hematuria, or generalized swelling of body. Lab results show blood urea raised, 20 to 40 अगर याद रखें raised है, serum creatinine 0.6 to 1.2 याद रखें तो ये raised है, HB7 कम है, urine complete examination पे there were proteinuria, there were numerous RBCs and WBCs. Likely diagnosis and how will you treat this anemia? हाँ जी, हाँ ठीक है। somebody has answered NSAID nephropathy, तो analgesic nephropathy कह सकते हैं, drug induced renal disease कह सकते हैं, and how will you treat this anemia? जी बताएं, how will you treat this anemia? You will treat it like normal anemia,
ठीक है ना, उसका ब्लड लॉस हो रहा है इसलिए उसको एनीमिया हो रहा है, तो आप उसको आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह दें, और बिकॉज एट दिस पॉइंट दे हैव नॉट मेंशन्ड कि उसकी, वी कैन अस्यूम कि उसकी किडनीज फेल हो रही हैं बिकॉज ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन वगैरह का मसला हो रहा है, तो फिर आप उसको एरिथ्रोपोएटिन भी दे सकते हैं। पहले आप उसकी आयरन सप्लीमेंट्स दे के सेट करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो रहा फिर आप एरिथ्रोपोएटिन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये सारे सिनेरियोज मेरी बुक में एक साथ लिखे हुए थे, तो हम एक ही करते हैं, आई थिंक इट शुड बी सफिशिएंट। Young boy has facial and ankle edema. He has history of passing frothy urine. Urine dipstick shows protein +3. Likely diagnosis, 4 causes. जल्दी से बताएं मुझे। माइक ऑन। Nephrotic. नेफ्रोटिक, सिंपल नेफ्रोटिक लिखें और 4 causes में, बिकॉज अब ये यंग बॉय है तो इसमें टॉप पे मिनिमल चेंज लिखें, फोकल सेगमेंटल लिख लें, फिर बाकी टाइप्स, राइट? ओके, फिर दोबारा आ गया है, सॉरी,